Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Assalamu alaikum viewers. As I have in my another video talked about William Shakespeare, today I have chosen one of his most famous tragedy, that is Macbeth. As you all are familiar, Macbeth was the king of Scotland and this story revolves around him. Macbeth was published in 1606 and this is a play about lust of power. There are few characters in this important character in this play. What are those? Let me tell you about that. This play was performed, this is the setting of the play is Scotland, and this is the time when Scotland was ruled by the king, and Macbeth was at that time Thane of Glamis. So the country had faced many problems. What was that? There were some skirmishes on the border of Scotland. These were with the Norwegian border. Some Norwegian, they were interrupting in the affair of the state. So Macbeth was sent by the king to settle those conflicts. Macbeth, along with his army, he went there and there was a war, and he fought that war with those people, and this was the time that he won. And this was on two separate borders of Scotland, so he won that war. Macbeth was accompanied by his friend. So let me tell you about first of all, let me tell you about the name of those important characters which were in the play. King of that country was Duncan. King Duncan was king of that country, Scotland. There was another character, Macduff. He was also a brave person. He was noble man, and he was brave. Originally fought alongside Macbeth. He was loyal to King Duncan. As Macduff was not only noble, but he was also a hero and a soldier, a very brave soldier. So in the beginning he was with Macbeth, but in the end of the play he was the person who kills Macbeth. Then his family was, in fact his family was, whole of his family was killed by Macbeth. So he was, it is said about him that not of woman born, presumably born by C-section. Then there is Macbeth and his wife, Lady Macbeth. Macbeth was, in the beginning, he was Thane of Glamis, then he became Thane of Cawdor, King of Scotland. He was a tragic hero. He was very ambitious, paranoid, and really superstitious. He was greedy, but he loves his wife most. He was evil and traitor, but he became the King of Scotland. Then his wife, Lady Macbeth, was there. She was eventually she loves her husband. She was ambitious, protective, paranoid, and in the play she commits suicide. Not only these, there are other characters like Banquo and his son Fleance, the three witches, Malcolm and Donalbain. These were the King Duncan's son. Now there are other more than 20 characters in this play, but these are the important characters that I have mentioned their name.
So let me start the story, how the story begins. So कैरेक्टर्स बताने के बाद मैं स्टोरी का आपको प्लॉट बता दूं कि बिगिनिंग जैसे मैंने बताया कि मैकबेथ और बैंक्यो दोनों वॉर पे गए हुए होते हैं और वहाँ से वो वापस आ रहे होते हैं। तो जब वो फतेयाब होकर वो जंग को जीत कर जब वापस आ रहे होते तो रास्ते में उन्हें विचेस मिलती हैं। जंगल से गुज़र रहे होते हैं तो उन्हें 3 विचेस मिलती हैं और वो विचेस उसे प्रोफेसी करती हैं। दे आर इन अ वेलकमिंग नोट, दे आर टेलिंग मैकबेथ अगेन एंड अगेन, बार बार उसे कहती हैं कि यू आर थेन ऑफ ग्लैमस, थेन ऑफ कॉर्डर। तो उस पर मैकबेथ हैरान होता है और उनसे पूछता है, मैकबेथ उनसे कुछ क्वेश्चंस करता है, लेकिन फिर वो उसे कहती हैं कि यू विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये उनकी प्रोफेसी होती है। और उसके साथ साथ वो बैंको को भी प्रोफेसी करती हैं। बैंको भी एक जनरल था और उसको भी प्रोफेसी करती हैं। उसे कहती हैं कि इन योर डिसेंडेंट्स देयर विल बी द किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। कि बैंको तो किंग नहीं बनेगा मगर उसके डिसेंडेंट में स्कॉटलैंड के किंग्स बनेंगे। अब मैकबेथ और बैंको ये प्रोफेसी सुनते हैं तो वो थोड़ा सा उस पर इम्प्रेस होते हैं और वो उस पर सोचते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो आगे रास्ते में उनकी मुलाकात 2 नोबल मैन से होती है और वो आते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं मैकबेथ को कि उन्हें पहले तो उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और उन्हें साथ कहता है, मैकबेथ का शुक्रिया अदा करता है कि मैकबेथ ने ये जंग लड़कर स्कॉटलैंड को सेव कर दिया है। और उसके साथ साथ वो उसे कहते हैं कि दूसरा जो शख्स होता है वो मैकबेथ से कहता है कि यू आर he congratulates him that he became the thane of that is Cawdor। तो मैकबेथ कहता है कि आई नो दैट आई एम थेन ऑफ ग्लैमस एंड आई नो दैट थेन ऑफ कॉर्डर इज़ अलाइव एंड ही स्टिल वर्किंग देयर। लेकिन वो उसे कहता है कि हाँ वो है, लेकिन ये है कि ही बिकेम द ट्रेटर, ही अलॉन्ग विद Norwegian people he had traded against the country and the king is going to execute him the next day। और किंग ने ये ऑर्डर कर दिया है कि मैकबेथ जो है उसकी जगह थेन ऑफ कॉर्डर है। तो जैसे ही वो मैकबेथ ये न्यूज़ सुनता है उसके बाद एकदम से उसे ख्याल आता है कि अभी तो मुझे ये प्रोफेसी, विचेस ने ये प्रोफेसी दी थी कि मैं जो हूँ थेन ऑफ कॉर्डर बनूँगा। तो उसके बाद अब वो सोचता है कि किंग तो अलाइव है और मैं किंग कैसे बनूंगा, क्योंकि 3 जून की प्रोफेसी होती है कि वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। फिर उसके साथ साथ उसे ख्याल आता है कि बैंको के बारे में भी तो उसने प्रोफेसी उन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था कि बैंको जो है वो भी वो नहीं, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे, उसके आगे जो औलाद होगी वो स्कॉटलैंड के किंग बनेंगे। अभी इसी बातों में वो सोच रहे होते हैं तो मैकबेथ फिर क्या करता है कि अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, लेडी मैकबेथ को लेटर लिखता है और उसको ये इन्फॉर्म करता है कि इस तरह से उसे रास्ते में विचेस मिली हैं और वो उनके प्रोक्लेमेशन के बारे में बताता है कि विचेस ने किस तरह से प्रोक्लेम किया दैट ही वुड बिकम द थेन ऑफ कॉर्डर एंड ही हैज़ बिकम द थेन ऑफ कॉर्डर। तो लेडी मैकबेथ उसे फिर कहती है कि लेडी मैकबेथ को जब ये न्यूज़ पता चलती है तो शी बिकम्स हैप्पी। लेडी मैकबेथ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उसके नाम का जिक्र तो सच व्हाट इज़ हर ओरिजिनल नेम दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्ले, बट इट इज़ सेड दैट शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। कि उसका जो ग्रैंडफादर था वो स्कॉटलैंड का किंग हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट जो किंग है जो अभी का जो किंग है उसके फादर ने, किंग डंकन के फादर ने लेडी मैकबेथ के ग्रैंडफादर का मर्डर किया था। तो अब लेडी मैकबेथ के दिल में ये ख्याल भी आता है और प्रोफेसीज़ भी ट्रू हो रही होती हैं, तो कुछ उसके दिल में भी एज शी सम हैट्रेड फॉर द किंग वो है, मौजूद है। तो लेडी मैकबेथ जो है अब वो जब वापस आ जाता है, मैकबेथ वापस अपने घर आता है तो उसके बाद एक मैसेंजर आता है और उनके घर में लेडी मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि किंग जो है वो विज़िट करना चाहता है उनके कैसल में, किंग आना चाहता है। तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ किंग का वेट करते हैं। किंग आता है उनके घर और वो आफ्टर द डिनर व्हेन द किंग गोज़ टू स्लीप, तो लेडी मैकबेथ
मैकबेथ से कहती है कि यू शुड किल द किंग, कि इस किंग को मार देना चाहिए। मैकबेथ ऐसा नहीं करना चाहता, ही डज़ नॉट वांट टू किल द किंग, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे हार्श वर्ड्स कहती है कि दैट यू आर कॉवर्ड एंड आई हैव मैरिड अ कॉवर्ड मैन। तो वो इस तरह से ऐसे वर्ड्स बोलती है जिसकी वजह से वो इंस्टिगेट होता है इस बात की तरफ और वो परसुएड होता है, लेकिन वो खुद इसकी एफर्ट नहीं करता। लेडी मैकबेथ गोज़ हर सेल्फ, वो जो उसके किंग के गार्ड्स होते हैं उनको वो ड्रिंक देती है और वो सो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो डैगर लेकर किंग की बेडरूम में जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो उसको अपने फादर का फेस नज़र आता है और वो उसको मार नहीं सकती और वो वापस आ जाती है। उसके बाद वो जब वापस आती है तो वो जाते हुए वो डैगर जो है वो गार्ड्स के पास छोड़ के चली जाती है। तो आफ्टर सम टाइम मैकबेथ जब वहाँ आता है, वो उस डैगर को देखता है, तो वो डैगर लेके किंग के रूम में जाता है और वो किंग का मर्डर कर देता है। और वहाँ से वो उसी तरह से उस डैगर को हाथ में लिए लेडी मैकबेथ के पास आता है, तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। तो वो उसे बताता है कि मैंने इस तरह से किंग को मार दिया है। फिर लेडी मैकबेथ उसके हाथ से वो डैगर लेके वापस जाती है और वो उन्हीं गार्ड्स के पास रख कर आ जाती है, ये शो करने के लिए कि ये उन गार्ड्स की वजह से हुआ है। द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग मैकडफ आता है। मैकबेथ और मैकडफ को कंफ्यूज नहीं करना। मैकडफ आता है जो कि एक और जनरल है। अब वो किंग से मिलने आता है। जब मैकडफ उनके घर आता है तो मैकडफ के साथ अब वो कैसल में वो किंग के बेडरूम में जाता है, लेकिन जब वहाँ वो जाता है तो किंग को मरा हुआ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, और मैकबेथ जो है वो उससे ज़्यादा उस पर हैरानगी का इजहार करता है कि जैसे उसे इल्म ही नहीं है। फिर इसमें वो जो गार्ड्स होते हैं उनका भी मर्डर हो जाता है, उनको भी मार दिया जाता है ताकि वो ये अपनी इनोसेंस को वो प्रूव ना कर सके। अब उसके बाद ये होता है कि जो मैकबेथ है ही बिकम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड। मैकबेथ को इंग्लैंड का किंग बना दिया जाता है और उसके साथ साथ अब वो दोनों मैकबेथ और लेडी मैकबेथ अब उसकी खुशियाँ मनाते, लेकिन उसके साथ ही मैकबेथ को अपने वो जो उसका फ्रेंड था बैंक्यू, उसका ख्याल आता है कि अब दूसरी प्रोफेसी ट्रू हो गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेसी तो ये थी कि बैंक्यू को उन्होंने प्रोफेसी दी थी कि उसकी जो डिसेंडेंट्स हैं उनमें किंग्स बनेंगे। तो मैकबेथ को बैंक्यू से थोड़ा खौफ महसूस होता है और वो उसका भी थ्रू असैसिन्स, उसके पीछे असैसिन्स भिजवाकर उसका मर्डर कर देता है। अब जो दूसरी तरफ किंग डंकन है, उसके 2 बेटे होते हैं। वो दोनों बेटे जैसे ही उनको फादर की डेथ का पता चलता है, वो दोनों बेटे वहाँ से मुल्क से भागकर फ़रार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रोफेसी का पता चल जाता है। मैल्कम और डोनाल्ड बेन वो दोनों वहाँ से मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अब जब ये सारे इवेंट के बाद मैकबेथ अपनी वाइफ के साथ अपनी उसको एंजॉय कर रहा होता है, अपनी किंगशिप को, और सब अपने कोर्ट में वो मौजूद होता है। उस दौरान में when he was enjoying in the court he saw the ghost of बैंकू। उसे बैंकू का गोस्ट नज़र आता है और वो सिर्फ मैकबेथ को नज़र आता है और किसी को नज़र नहीं आता उस पूरे कोर्ट में। तो मैकबेथ फिर फीस्ट का ऐलान करता है और एज अ टोस्ट वो ऐलान करता है कि दिस टोस्ट, दिस रिजॉइस इज़ इन द नेम ऑफ माय डियर फ्रेंड बैंकू एंड वी मिस हिम, कि हम बैंकू को बड़ा मिस करते हैं और उसकी खुशी में आज हम ये खुशी उसके नाम करते हैं, और उसका वो ऐलान करता है। लेकिन बैंकू का जो गोस्ट होता है वो रूम से बाहर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आता है। जब वो दोबारा उसको मैकबेथ को नज़र आता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, ही बिकम्स एंग्री। तो और वो ऐसे बिहेव करता है क्योंकि और किसी को वो नज़र नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल इनसेन लग रहा होता है कि जैसे पागलों वाली हरकतें करता है। लेडी मैकबेथ उसे रूम में ले जाती है और इस तरह से उसको
लेकिन उसको जो बैंको का गोस्ट है वो सिर्फ मैकबेथ को नज़र आता है। नेक्स्ट डे जब मैकबेथ जाता है तो उसको वो फिर नेक्स्ट डे वो क्या करता है, उसको अब मैकडफ का भी खौफ होता है कि वो मैकडफ को नहीं, नेक्स्ट डे वो जाता है तो उसे फिर दोबारा से विचेस मिलती हैं केव में। अब वो दोबारा उनसे पूछता है, अगली प्रोफेसी पूछता है, तो विचेस अपने जो मास्टर है उसको बुलाती है और वो आके उसे इन्फॉर्म करती है दैट यू शुड बी केयरफुल ऑफ मैकडफ, कि मैकडफ से तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। अब मैकबेथ क्या करता है, असैसिन्स को मैकडफ के पीछे भेजता है। जब मैकडफ के पीछे असैसिन्स उसके कैसल तक जाते हैं तो मैकडफ तो वहाँ नहीं होता, लेकिन उसके कैसल में जितने भी लोग होते हैं, उसके जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन सबको वो मार देते हैं। मैकडफ वहाँ से भाग के इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड के किंग से वो अपनी सारी स्टोरी बयान करता है कि मेरी सारी फैमिली को मैकबेथ ने मर्डर कर दिया है। और किंग ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपनी आर्मी लेकर वो अपनी आर्मी उसके अटैक के लिए, स्कॉटलैंड पर अटैक के लिए अपनी आर्मी भेजते हैं। तो इस दौरान में जो लेडी मैकबेथ होती है वो शी इज़ सफरिंग विद द गिल्ट ऑफ किलिंग द किंग। उसको वो बार बार उसको ये बात अब गिल्ट महसूस होती है कि उसने किंग का मर्डर किया है, और वो बार बार अपने हाथों को धोती है और बार बार ये कहती है कि ब्लड उसके हाथों पर है और अभी तक उसके हाथों से ये ब्लड नहीं हट रहा। कई डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज शी इज़ सफरिंग दिस बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट दैट इज़ इन हर माइंड एंड इन हर सोल। तो इसी सिचुएशन में शी इज़ सो मच डिस्ट्रेस्ड एंड आफ्टर सम टाइम शी डाइज़, वो मर जाती है। जब उसके बाद वो मर जाती है तो मैकबेथ जब उसके मरने की न्यूज़ सुनता है उस टाइम पे वो कहता है कि लाइफ इज़ लाइक अ कैंडल विच कैन बी ब्लोन आउट बाय द फेंट ब्रेथ ऑफ एयर। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो इस एक्सट्रीम एंगर के बाद जब उधर से मैकडफ आर्मी लेकर स्कॉटलैंड पर अटैक करने आता है, मैसेंजर आता है और किंग को इन्फॉर्म करता है कि वुड्स में ऐसे लग रहा है कि जैसे सारी की सारी वुड्स खुद ब खुद मूव करना शुरू हो गए हैं। और बाद में पता चलता है कि जो इंग्लैंड की आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया है स्कॉटलैंड पर, और इसके एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मैकडफ किल्स मैकबेथ का मर्डर करता है। और उसके बाद मैकबेथ का सर लेकर वो किंग डंकन के बेटे मैल्कम के पास जाता है, और उसके बाद मैल्कम जो है वो स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। लेकिन बाद में ये बताया जाता है कि लेटर ऑन इन द लेटर ईयर्स बैंको के जो डिसेंडेंट्स थे दे रिमेंड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो भी स्कॉटलैंड के किंग बने। और इस तरह से वो जो विचेस की प्रोफेसी थी वो पूरी हुई। एंड ड्यू टू द लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर wealth, we can say that a noble person Macbeth has ruined his whole life, and he was persuaded not only by witches but also by his wife. So this is the tragedy of Macbeth. Hope you would have enjoyed it. Please like and subscribe my channel. We will meet again. Thank you.